السلام علیکم دوستوں، میرا نام بلال خان ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اپنے دوسرے ٹاسک کی طرف آتا ہوں جو کہ ہے پروجیکٹ۔ تو جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس کے ہینڈلنگ کے لیے میں یہ فائل ابھی آگے بناؤں گا اور اس میں کوڈنگ کروں گا۔ تو اس کے کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک فولڈر بناتا ہوں اور اس کو نام دیتا ہوں پروجیکٹ ورک۔ تو اس پروجیکٹ ورک کے اندر میں ایک فائل بناتا ہوں پروجیکٹ .go۔ تو اس میں پروجیکٹ کی ہینڈلنگ کروں گا۔ تو اس کے کرنے کے لیے اب میں سب سے پہلے پیکج یوز کرتا ہوں پروجیکٹ ورک کے نام سے، اور یہاں پر اس کو پروجیکٹ ورک یہ اس طرح۔ اس کے بعد یہاں پر لائبریری امپورٹ کرتا ہوں FMT، پھر فنکشن، اور فنکشن جو ہوگا وہ ہوگا پروجیکٹ۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر لکھوں گا سب سے پہلے FMT پرنٹ لائن، یہاں پر انٹر این آپشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مجھے آپشن میں شو کرواؤں گا۔ سب سے پہلا آپشن کیا ہوگا؟ پرنٹ ایف کریٹ اے نیو پروجیکٹ، اور دوسرا جو آپشن ہوگا وہ ہوگا ورک آن ایگزسٹنگ پروجیکٹ، تیسرا جو ہوگا پرنٹ ایف یہ ہوگا ڈیلیٹ اے پروجیکٹ، نمبر 3 ڈیلیٹ اے پروجیکٹ۔ تو یہ 3 آپشن ہیں۔ ان 3 آپشنز کو یہ پروجیکٹ کی پرفارمنس ہوں گی۔ تو اس کو میں 1 بائی 1 اس کو آپ کو بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں سوئچ کا پہلے پرنٹ ایف لکھتا ہوں، FMT پرنٹ ایف انٹر یور چوائس۔ یہاں پر یوزر سے میں چوائس لوں گا، یہاں پر اسکین LN PD آپشن، سوری PD نہیں بلکہ صرف % آپشن۔ تو یہاں پر اس کو میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں ویریبل آپشن اسٹرنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہو جانے کے بعد اب سوئچ کا یوز کرتا ہوں، اور سوئچ میں لکھتا ہوں آپشن۔ تو پہلا جو کیس ہوگا وہ ہوگا کریٹ اے نیو اکاؤنٹ۔ تو اب جو کریٹ اے نیو اکاؤنٹ کا آپشن یوزر سلیکٹ کرے گا، تو اس کو میں کیا بولوں گا؟ FMT پرنٹ لائن کریٹ اے نیو پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر پہلے اوپر بھی لکھتا ہوں FMT پرنٹ لائن، اور یہاں پر ڈاٹس لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو کاپی کرتا ہوں سمپل، اور پیسٹ یہاں پر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں۔ اس طرح میں یہاں پر کیس 2 بھی لکھتا ہوں۔ میں اس کیس 1 کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن فی الحال میں یہ کیس 2 اسی طرح لکھ لیتے ہیں تاکہ آگے جا کے مجھے بعد میں پرابلم نہ ہو۔ تو FMT پرنٹ لائن کریٹڈ اے نیو پروجیکٹ۔ اسی طرح پھر کیس 3، وہ کیس 2 یہ کیس 3، اس کے بعد FMT پرنٹ لائن ڈیلیٹڈ اے پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس کو میں آگے جا کے پرفارم کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ڈیفالٹ اگر 3 کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر وہ ڈال دے، انپٹ کر دے، تو اس میں لکھوں گا پرنٹ لائن ایرر انٹر دا کریکٹ چوائس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد OS ایگزٹ، تو یہاں پر اسٹیٹس کا 0۔ تو یہ سیو کر دیا۔ تو اب یہاں پر آتے ہیں اور میں لکھتا ہوں FMT پرنٹ ایف انٹر دا پروجیکٹ ID، ٹھیک ہے۔ اب یوزر پروجیکٹ ID وہاں پر لکھے گا، اور اس کو میں یہاں پر یہ ڈاٹس دے دیتے ہیں۔ اب صحیح ہے۔ پرنٹ ایف یہاں پر FMT اسکین LN، اور اس کے اندر میں لکھوں گا %PD ID۔ یہ میں ویریبل بعد میں ڈکلیئر کر کے آپ کو دکھا دوں گا۔ اس کے بعد لکھوں گا پرنٹ ایف انٹر دا پروجیکٹ نیم۔ آپ پروجیکٹ کا نام انٹر کریں، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ پروجیکٹ نام اسپیس کے ساتھ ہے، تو میں انٹرنس ود اسپیس، یہ جو ہے یہاں پر
इंट्रेंस का जो फोल्डर है उसमें साइन अप के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है विद स्पेस, तो इसमें मैं लिखूंगा नेम, ठीक है। फिर उसके बाद fmt printf enter the owner's name। तो यहाँ पर मैं जो प्रोजेक्ट का ऑनर है वो कौन सा होगा, तो इसका नेम भी विद स्पेस, तो यहाँ पर ऑनर नेम, यहाँ पर नेम की बजाय मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम अब सही है। ये हो जाने के बाद अब फिर से printf और यहाँ पर लिखूंगा एंटर द स्टार्टिंग यानी डेट, यानी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए फिर मैं लिखूंगा fmt scan ln, क्योंकि डेट के दरमियान स्पेस नहीं है तो %pd start date। इसके बाद fmt printf enter the ending date, तो यहाँ पर भी इसको लिखता हूँ fmt scan ln और %pd end date, ठीक है। उसके बाद fmt printf enter the description, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए दरमियान में उसमें स्पेस आती है हर वर्ड्स के बाद, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्रेंस विद स्पेस और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद fmt printf enter the यहाँ पर चलो printf do you want the group to be do you want the project to be in a group, यानी आप चाहते हो कि एक प्रोजेक्ट जो है एक ग्रुप के अंदर हो, तो ये जो है क्या होगा, इसका मैं ऑप्शन दूंगा y या n, यानी यस और नो। तो अगर वो यस करेगा तो उससे ग्रुप में शामिल करूंगा, अगर नहीं तो उसको नहीं करूंगा। तो यहाँ पर fmt scan ln और यहाँ पर %pd ग्रुप चॉइस, ठीक। फिर उसके बाद fmt printf यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यूजर से वो यस और नो करेगा तो मैं यहाँ पर स्विच का स्टेटमेंट डाल दूंगा, स्विच pd ग्रुप चॉइस और इसके अंदर लिखूंगा केस 1 y यानी यस, तो वो केस 1 क्या होगा, यस, तो मैं लिखूंगा fmt print line बल्कि printf enter the group name to create, यानी आप ग्रुप नेम एंटर करें ताकि क्रिएट हो सके ग्रुप। उसके बाद fmt नहीं बल्कि एंट्रेंस विद स्पेस ग्रुप नेम। फिर उसके बाद अगर केस नो यानी वो बंदा n लिख देता है, यानी मुझे नहीं करना प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट नहीं करना, प्रोजेक्ट को ग्रुप में नहीं डालना, तो इसके लिए मैं लिखूंगा fmt print line ओके। तो इसके बाद os exit 0। अब इसके बाद केस नहीं डिफॉल्ट, अगर वो कोई और चीज सेलेक्ट कर देता है तो y या उसके अलावा n के अलावा, तो इसमें मैं लिखूंगा fmt print line error enter the correct choice। फिर उसके बाद os exit और 1। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद एक और केस डालना है मैंने, और वो केस क्या होगा, यहाँ पर तो ठीक है। अब ये सॉरी केस नहीं बल्कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, fmt उसमें स्टेटस लिखना है, तो स्टेटस में मैं लिखूंगा do you want the choose the project
स्टेटस। अब वो प्रोजेक्ट स्टेटस कौन सा होगा, प्राइवेट या पब्लिक, यानी लोगों को दिखाए या उसको प्राइवेट रखे। तो इसके लिए FMT यहाँ पर क्या लिखूंगा, FMT स्कैन LN और इसके अंदर लिखूंगा %PD स्टेटस। इसके बाद मैं स्विच का यूज करूंगा यहाँ पर भी और इसमें लिखूंगा FMT स्टेटस। अब इसके बाद इधर लिखूंगा केस 1। अब केस 1 में वो क्या होगा, प्राइवेट, ठीक है। अगर वो प्राइवेट लिख देता है इधर तो उसके मैं यहाँ पर FMT प्रिंट लाइन द प्राइवेट स्टेटस इज chosen, the private status is selected, चलो जो भी है, तो प्राइवेट स्टेटस सेलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर केस पब्लिक होता है यानी पब्लिक को वो सेलेक्ट करता है तो FMT प्रिंट लाइन select the public status is selected। उसके बाद अगर वो केस बल्कि डिफॉल्ट इसके अलावा कोई चूज करता है तो FMT प्रिंट लाइन एरर एंटर द करेक्ट चॉइस। तो इसके बाद OS एग्जिट, वहां पर स्टेटस कौन था, ये 2। तो ये तो हो गया। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ एरर है, वो PD का एरर है, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने से, तो उसको मैं यहाँ पर ऊपर आके डिक्लेयर करता हूँ। और टाइप प्रोजेक्ट डिटेल, तो प्रोजेक्ट डिटेल स्ट्रक्ट, इसके अंदर लिखता हूँ ID। ID के बाद होगा यहाँ पर सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ID है, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, और उसके बाद ग्रुप चॉइस है और स्टेटस है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद है ग्रुप चॉइस और स्टेटस। तो ये कौन से होंगे, स्ट्रिंग। तो मैं वेरिएबल यहाँ पर लिखता हूँ PD इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो अब मुझे कोई भी एरर इस तरह शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बगैर एरर के है। मैं यहाँ पर चॉइस के फाइल में आया और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को खत्म करके यहाँ पर लिखता हूँ कौन सा है, प्रोजेक्ट वर्क डॉट कौन सा होगा, प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का फंक्शन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऊपर बनाया हुआ ये। तो अब देखते हैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं कि वाकई ये काम करता है। तो गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पर मैं कोई भी उसका ईमेल, जीमेल लॉगिन कर देते हैं, फिर पासवर्ड। उसके बाद अकाउंट इनको तो हो गया। अब प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट में मैं लिखता हूँ चॉइस 2। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक ही लाइन में आ गया है। मैं सिंपल इसको रिमूव का लिख देते हैं, ये प्रिंट S की बजाय प्रिंट LN। ये न्यू लाइन मुझे शो करवानी है, ठीक है। चलो अब फिर से रिमूव करते हैं, फिर से बिल्ड एंड रन। अब सेलेक्ट टू, ये ईमेल @gmail, पासवर्ड। उसके बाद ये सेलेक्ट चॉइस 2, ये देखें। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वर्क ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इन दोनों पे मैंने अभी काम करना है, बाद में सिर्फ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट चॉइस 1। तो ये देखें अब ये ऑप्शन मुझे शो कर रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं इसमें प्रोजेक्ट ID सेलेक्ट कर देता हूँ 1 2 3। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम अल्फा, जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा। उसके बाद ऑनर बिलाल, चलो ये। उसके बाद डेट होगी 2020 और जो भी है 2010 2020, ठीक है। एंडिंग डेट कौन सी होगी, एंडिंग डेट 2010 और 2021। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डू यू वांट द प्रोजेक्ट टू बी इन अ ग्रुप, मैं कहता हूँ यस। तो ये कहता है इंटर द ग्रुप नेम टू क्रिएट, मैं कहता हूँ
माई ग्रुप, चलो जो भी माई ग्रुप, उसके बाद चूज द प्रोजेक्ट स्टेटस, मैं लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, ये देखें द पब्लिक स्टेटस इज सेलेक्टेड। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब जो है आज के लिए इतना ही है। मैं आइंदा आने वाली वीडियो में ये जो दो चॉइसेस हैं, क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, सॉरी वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये मैंने ऑप्शन गलत लिखा था, वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद डिलीटेड अ प्रोजेक्ट, इन दो ऑप्शन पे मैं आने वाली वीडियो में काम करूंगा। तो ये पहली चॉइस थी, तो ये भी आसान ही है, देख लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, मुझसे पूछ भी लीजिएगा। तो अब के लिए इतना ही, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।